सॉरी बाय मिस्टेक। एक्चुअली मैंने जो तुम लोगों को जो करा रहे हैं बायोलॉजी वाला, उसमें मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी हैंड रिटन एक्सरसाइजेस बनाई थी जो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने अभी वही रोहित को मैसेज भेजा था, उसने भेजी तो वही खोल के देखने लगे तो गलती से ये जो है वो हो गया, मुझसे स्काइप बंद हो गया था। सॉरी, तो एक सेकंड उसको मैसेज भेजने की मिल नहीं। पिछली बार बहुत सारी बनाई थी। ठीक है, ओके। फिर से चेक कर लो, सॉरी फिर से चेक कर लो EIA की डेफिनेशन की। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यहाँ तक लिखा था ना, is the process of identifying, predicting, is the process of identifying, predicting, evaluating, एक सेकेंड, हेलो, हाँ रोहित हम क्लास ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ देख नहीं देख लिया खोल के, बस यही चाहिए था। ठीक ठीक, थैंक यू। Yes, so EIA, as defined by International Association for Impact Assessment, is the process of identifying, predicting, evaluating, and minimizing. Is the process of identifying, predicting, evaluating, and minimizing the impact of developmental project on physical, social, and other environmental aspects before major decisions are taken. Before major decisions are taken. तो मतलब ये कि अगर एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया फिर तो, और गवर्नमेंट ने कमिट कर दिया कि इतना पैसा देना है, तब तो फिर देंगे ही। तो वो कमिटमेंट के पहले, prior to commitment and prior to sanction of the project, all this is to be done. तो प्रोजेक्ट को ओके करने के पहले, उसके इम्प्लीमेंटेशन के पहले ये सब किया जाता है, कि जिससे उसके पहले ही उसका इवैल्यूएशन हो जाता है, और इवैल्यूएशन के बाद में फिर जो है, इवैल्यूएशन के बाद में फिर बता देते हैं कि जो है ये प्रोजेक्ट को करना है कि नहीं करना है, और इवैल्यूएशन के टाइम पे ही बता देते हैं कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा और उसको मिनिमलाइज कैसे करना है, उसको मिनिमम जो है किस तरीके से करना है। ये तो डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब इसका आंसर लिखो कि why is it important या why is it necessary, why is EIA evaluation necessary, why is EIA evaluation necessary before the start of project। इसमें लिखो EIA evaluation
EIA evaluation tells the negative and positive impacts. EIA evaluation tells the negative and positive impacts of a developmental project on environment, economy, and society. EIA evaluation of a project tells the positive and negative impacts of a developmental project on environment, economy, and society. Therefore, the EIA evaluation helps the decision makers. Therefore, the EIA evaluation helps the decision makers Therefore, the EIA evaluation helps the decision makers in deciding whether the project should be funded and implemented or not. So EIA evaluation helps the decision makers in deciding it tells the decision makers whether the project should be funded or not, and what are its good and bad effects. This also helps them justify why a particular project is being funded and implemented. This also helps the decision makers justify why a particular project is being funded and implemented. ठीक है, ये हो गया कि हम क्यों EIA इवैल्यूएशन करते हैं, EIA इवैल्यूएशन क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे डिसीजन लेने में आसानी होती है कि प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि इट ऑल्सो हेल्प्स in reducing the negative impact of the project on environment. It also helps in reducing the negative impact of project on environment. Okay, so this is what is EIA, why it is necessary, why EIA should be done, and now the objectives of EIA or the aim of EIA. What is the goal of environmental impact assessment, or what is the aim of environmental
impact assessment. The immediate aim of EIA, the immediate aim of EIA is to find out, the immediate aim of EIA is to find out the potential impact of project, the immediate aim of EIA is to find out the potential impact of project on the environment. On the environment. Based on environmental impact, to make recommendations to accept, modify or reject the project proposal. या तो सीधे सीधे एक्सेप्ट करेंगे या फिर मॉडिफाई कराएंगे या फिर उसको टोटली रिजेक्ट कर देंगे। तो मतलब एक्सेप्ट तब करेंगे अगर एकदम बढ़िया है, सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं कि एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट ये आएगा और उसको इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे। अगर ये सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, और बजट अगर जो है वो जो भी उसका प्राविधान है उसी के अंडर आ रहा है तो ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। और अगर उसमें लगता है कि कहीं पे जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट और कम किया जा सकता है तो फिर मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं। और मॉडिफिकेशन जब सजेस्ट करते हैं तो एकदम ऐसे नहीं कहते हैं कि हाँ बस इसको मॉडिफाई करके ले आइए। मॉडिफिकेशन मीन्स कि स्पेसिफिक सजेशन दिए जाते हैं, that you have to add this or you can handle this aspect like this। इस तरीके से एकदम डिटेल में उनको सजेशन दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनसे मॉडिफाई करवाया जाता है। तो एक हो गया सीधे सीधे एक्सेप्ट करना, दूसरा हो गया मॉडिफाई कराना, और तीसरा अगर एकदम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आने वाला है और बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है और उसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पूरा रीराइट करना पड़ेगा, तब फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है कि फिर मतलब फ्रेश प्रपोजल जो है वो उनको सबमिट करना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव या एम ये है टू सजेस्ट acceptance or modification or rejection of the project proposal. Then next aim of EIA is to specify modifications desired, to modify the project as suggested, and also indicate
terms and conditions for acceptance of the project proposal, and to also set terms and conditions for the acceptance of project proposal. मतलब मॉडिफिकेशन एक तो स्पेसिफिकली बताएंगे कि ये इस पार्ट में मॉडिफाई करना है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या ये वाला इफ्लुएंट ठीक से डील नहीं किया है, इससे पॉल्यूशन हो सकता है, स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया जाता है। और उसके बाद अगर मॉडिफाई करा रहे हैं तो साथ में ये भी बताते हैं कि इस हद तक आपको मॉडिफाई करना है, और जब ये एनवायरनमेंट के लिए ये वाले स्टैंडर्ड्स मीट करेगा तब उसको रिकंसिडर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बस जरा सा मॉडिफाई ऑन पेपर पे करके ले आए, उसमें पूरा एनालिसिस उनको देना पड़ेगा कि हाँ इससे ये इम्पैक्ट आ रहा है, अब इसको ऐसे डील करेंगे, और पूरा मॉडिफिकेशन करके और फिर उनको शो करना पड़ेगा कि हाँ जो कमिटी ने जो स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब किए हैं ये मॉडिफिकेशन करने के बाद अब ये इन स्पेसिफिकेशंस को मीट करेगा, इसलिए इसको रिकंसिडर किया जाए। तो EIA इवैल्यूएशन में ही ये काम होता है कि बताना कि स्पेसिफिकली ये मॉडिफिकेशन डिजायर्ड है, और ये मॉडिफिकेशन करके जब ये वाले एनवायरनमेंट के स्पेसिफिकेशन मीट होंगे तब इसको फिर रिकंसिडर किया जाएगा। ठीक है, देन next aim or the goal of EIA is to suggest measures for minimizing or mitigating environmental effects of the project proposal. To suggest measures for minimizing or mitigating the impact of project proposal on environment. The next aim of EIA to ensure that stakeholders' opinion is taken. To ensure that stakeholders' opinion is taken. स्टेक होल्डर का मतलब जो लोग अफेक्टेड होंगे, जो अफेक्टेड होने वाले हैं उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। उनका ओपिनियन लिया गया है कि नहीं, ये EIA जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं उनको इंश्योर करना होता है कि हाँ जो है इसमें उनका ले लिया गया है, ओपिनियन ले लिया गया है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड होने वाले हैं वो उस प्रोजेक्ट प्रपोजल से खुश हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और लास्ट एम ऑफ EIA है कि EIA ensures that
monitoring of the project. EIA ensures that the monitoring of the project will be done during and after implementation of the project. EIA ensures that monitoring of the project will be done during and after implementation of the project. तो EIA वाले जो हैं जिस समय वो इंश्योर करते हैं कि या तो जिसने प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया है वो खुद उसकी मतलब जिस समय इम्प्लीमेंटेशन होगा और बाद तक इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब प्रोजेक्ट एकदम चालू हो जाएगा उसके बाद भी जो है एटलीस्ट कुछ समय तक उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अब वो EIA वाले खुद भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं या जिसका प्रोजेक्ट है उनको भी कह सकते हैं कि आप मॉनिटरिंग करते रहिए, हम टाइम टू टाइम जो है विजिट करके और चेक करेंगे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग इसकी हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये है कि EIA से ये इंश्योर होना चाहिए कि मॉनिटरिंग जो है वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग जो है चल रही है और मॉनिटरिंग में कोई कमी नहीं है। So EIA ensures that during the implementation of the project and after the implementation of the project, proper monitoring is being done. तो ये तो इतने जो है मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA हैं। इसके अलावा जो है कुछ बहुत लंबे समय तक जो मॉनिटरिंग चलती है उसमें आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ EIA या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA। अब लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग हर प्रोजेक्ट की नहीं होती है। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग उन्हीं प्रोजेक्ट्स की होती है जिनका बहुत हेवी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, जिनका सालों तक एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आता रहता है। उनकी मॉनिटरिंग भी जो है वो बहुत समय तक चलती रहती है। तो प्रोजेक्ट जो है पूरा होने के बाद भी काफी लॉन्ग टाइम तक मतलब बहुत सालों तक जो है उसकी मॉनिटरिंग चलती रहती है, क्योंकि एनवायरमेंट पे जो इफेक्ट है वो एक दिन, 2 दिन, 4-6 दिन ऐसे नहीं पता लगता है। इट टेक्स years for the complete effect on the environment to come. It takes years. तो कुछ महीनों में भी नहीं पता चलता कि एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तब तक तो सब सही दिखता है। काफी साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद तब एनवायरमेंट पे उसका इफेक्ट शो अप करता है। तो तब तक मॉनिटरिंग करते रहना वो कहलाता है लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग बाय द EIA committee members on the project, on the long term project. So that is long term objective of EIA. अब heading डालो, what are the long term goals of EIA or what are the long term objectives of EIA? What are the long term objectives of EIA? इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि EIA ensures that natural resources EIA ensures that the natural resources and ecosystem EIA ensures that the natural resources and ecosystem of that region
are preserved over the years. EIA ensures that the natural resources and ecosystem of that place are maintained for years. Second point is the long-term objective of EIA. The long-term objective of EIA is to make sure the long-term objective of EIA is to make sure that there is no permanent damage to the environment or ecosystem. The long-term objective of EIA is to make sure that there is no permanent damage to the environment or ecosystem. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है EIA keeps track that stakeholders the stakeholders are not adversely affected. EIA keeps track that the stakeholders are not adversely affected. Last point है EIA monitors the health and safety of human and animals of affected region. Health and safety of human and animals of affected region. The EIA process was implemented in USA in 1970. EIA process was implemented in US in 1970. And in India in 1994. And in India in 1994. In 1994 in India,
उसमें भी यूएस में तो 1970 से चल रहा है, हमारे यहाँ 1994 से चल रहा है, लेकिन 94 में भी पहले ये था कि खाली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक प्लान सबमिट करना नेसेसरी होता था, कि ये देखने के लिए कि इन केस ऑफ डिजास्टर कोई प्लान है कि नहीं है, मतलब जैसे काइंड ऑफ प्लान फॉर इवैक्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर कोई जैसे बॉयलर के फटने के चांसेस हैं तो उससे कितना दूरी पे और चीजें हैं, या कितना दूरी पे लोग उससे काम करते हैं जो अफेक्टेड हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो 94 में भी कोई EIA का एज सच जैसा अब इवेल्युएशन होता है वैसा नहीं होता था, बस खाली जो है एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, या फिर उसको कभी कभी EMP भी बोलते थे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी बोलते थे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को DMP बोलते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को EMP बोलते हैं। तो 94 में भी जब ये स्टार्ट हुआ हमारे कंट्री में, तब भी बस ये होता था कि एक इमरजेंसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। इन केस ऑफ डिजास्टर what steps will be taken by the owner of the factory, that should be given, कि in case कोई डिजास्टर होए, डिजास्टर से ही ज्यादा ह्यूमन और एनवायरनमेंट को लॉस होता है, तो इन केस अगर कोई डिजास्टर होती है तो उस समय के लिए प्रेडिक्टेड क्या प्लान है कि क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे तुरंत राहत मिले, वो सबमिट करना जरूरी होता था। और फिर लेटर इन 2006 प्रॉपर करेक्टेड EIA वाज इम्प्लीमेंटेड। ये भी लिख लो कि लेटर इन 2006, करीब 10 साल बाद, लेटर 10 से ज्यादा 11-12 साल बाद, लेटर इन 2006 प्रॉपर EIA evaluation was implemented. In 2006 proper EIA evaluation was implemented and corrected EIA regulations were circulated. तो जो अभी जो चल रहा है वो बेसिकली हमारे कंट्री में 2006 से स्टार्ट हुआ है, और जबकि और जगहों पे काफी पहले से चल रहा था, मतलब 70s से जो है इस टाइप का इवैल्यूएशन चल रहा था। हमारे यहाँ 94 से इम्प्लीमेंट किया, उसमें भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अपलोड कराते थे। और अब 2006 से प्रॉपर EIA इवैल्यूएशन हर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का मैंडेटरी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि how many categories are there? How many categories are there for project evaluation? How many categories are there for project evaluation? Now you write the projects submitted. The projects submitted are divided into 3 categories. The projects submitted are divided into 3 categories. Category A, category B, and category B1 and category
B1 B1 कैपिटल में लिख जाएंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी B1। कैटेगरी ए, कैटेगरी ए these projects require clearance from expert appraisal committee of central government। Category A projects require clearance from category A projects require clearance from central government expert appraisal committee। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, मैं भी क्लास ले रही हूँ, अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, तब मैं कॉल कर लूँ इसी नंबर पे। नहीं, मैं भी कॉल कर लेती हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं कॉल कर लेती हूँ अभी आपको, ठीक है? हाँ ठीक है। सो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। कैटेगरी ए वाली एक्चुअली जो है वो वाले प्रोजेक्ट हैं जिनका हेवी इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट पे, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियरेंस देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी को क्लियरेंस देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट लिखो कैटेगरी B1। कैटेगरी बी वाले दो में डिवाइड कर देते हैं, B1 एंड B2। सो फर्स्ट कैटेगरी B1, category B1 projects require clearance from state government expert appraisal committee। Category B1 projects require clearance from state government expert appraisal committee। Then last is category B2, जो जिनके इवेल्युएशन की जरूरत नहीं है। कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स are exempted from EIA clearance। Category B2 projects are exempted from EIA clearance। exempted मतलब उनको जरूरत नहीं है, are exempted from EIA clearance। तो ये तीन कैटेगरी में पहले जो है, सबसे पहले EIA का काम होता है कि तीनों कैटेगरी में जितने प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हुए हैं उनके EIS देख के, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स देख के, स्टेटमेंट इसीलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब कमिटी के पास पूरा अगर प्रोजेक्ट प्रपोजल पढ़ने का टाइम नहीं होता है
तो EIS या इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो होता है, वो किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि EIS में शॉर्ट में उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ एक्चुअली दिया होता है। EIS में दिया होता है कि क्या प्रोजेक्ट है, और उसके लिए मतलब एकदम ब्रीफ में दिया होता है कि क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होगा, और क्या उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा। सारी ही चीजें जो पूरे प्रोजेक्ट प्रपोजल में डिटेल में डिस्क्राइब करी जाती हैं, उन्हीं का पूरा एक जैसे समरी दो छोटे छोटे पैराग्राफ में वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट में दिया जाता है। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट इज लाइक अ वेरी वेरी ब्रीफ summary of the entire project proposal. So when the committee members have to just divide them in the 3 categories, they don't have time to go through the entire project proposal. उसको तो बाद में करेंगे ही धीमे धीमे evaluation, but initial sorting के लिए तीनों categories में उनको sort करने के लिए they just look at the EIS, environmental impact statement, and then they are sorted in the 3 categories. Category A, which have heavy impact on environment, they will be actually evaluated twice, first by the state committee and then by the central committee. So for them, the clearance from expert appraisal committee of central government is mandatory. Then category B is divided into 2 types, B1 and B2. B1 category require only clearance from state government, that is expert appraisal committee of state government. And the third category, that is category B2, they do not require any kind of appraisal or any kind of clearance. मतलब उनका जो category B2 वाले हैं, उनका एकदम नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होने वाला है एनवायरनमेंट पे। वो किसी और टाइप के प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट से कुछ मतलब लेना देना नहीं है, तो इसलिए उनका एनवायरनमेंट पे कोई प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, और अगर बहुत लॉन्ग टर्म में आएगा भी तो कुछ बहुत थोड़ा सा कुछ बहुत मिनिमम इम्पैक्ट होगा, जिसके लिए ना तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे किसी लेवल पे उसके लिए इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। तो कैटेगरी वाले टोटली एग्जेम्प्टेड होते हैं एनी EIA इवैल्यूएशन से, उनको जरूरत नहीं होती। कैटेगरी B1 वालों का मिनिमल इवैल्यूएशन होता है, और कैटेगरी A वालों का 2 राउंड्स ऑफ इवैल्यूएशन होता है। मतलब पहले एक बार से स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे और फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। और एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी में तरह तरह के मेंबर्स होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट वाले होते हैं, कुछ इकोनॉमी वाले होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, कुछ स्टेक होल्डर होते हैं। वो तो अभी आगे बताएंगे कि there is a proper constitution of expert appraisal committee, and at both levels, at the state level and at the central level, and these committee members will sit together and they will go through each and every section of the project proposal, and then they will see whether any kind of modification in the proposal is required with respect to impact on environment. And if any modification is required, it should be mentioned very specifically by the appraisal committee members, that what type of modification is required, and after modification, what are the specifications that the project proposal should meet. तो मतलब मॉडिफिकेशन करने के बाद की भी वो गाइडलाइन लेआउट कर देते हैं कि मॉडिफिकेशन करने के बाद ये वाले ये चीजें मीट होनी चाहिए, तब उसको रिकंसिडर किया जाएगा। और तभी भी अगर आपने ऐसे नहीं मॉडिफाई किया कि वो चीजें मीट कर पाए, तब इवैल्यूएशन
नहीं किया जाएगा. So after modification it should meet certain criteria and then again it will be evaluated. तो ये कैटेगरी तक वाला आज बता दिया. फिर उसके बाद में आपको फिर बताएंगे कि इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, EIA रिपोर्ट में क्या होता है, EIA स्टेटमेंट में क्या होता है, ये सारा कुछ कराएंगे. इससे जो है थोड़ा सा ओवरव्यू पता लगेगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में कि क्या एक्चुअली किया जाता है. स्टेप्स वाला बहुत इम्पोर्टेंट है. स्टेप्स वाले के लिए अभी मुझे कुछ और वो डायग्राम टाइप भी अपलोड करना पड़ेगा जिससे स्टेप्स आपको समझ में आएंगे. और तब उसके बाद में फिर कराएंगे. तो पिछली बार तो क्योंकि ऑफलाइन चल रहा था तो ये EIA के स्टेप्स या फिर फ्लो चार्ट या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसको पहले अपलोड कर देंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको फिर डिस्कस करेंगे. और कल तो वही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराएंगे और वैसे उसकी ये एक्सरसाइजेस भी हम क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे. फिर वो सब्सिक्वेंट क्लास में आएगा. अभी उसमें टाइम लगेगा लेकिन सब्सिक्वेंट क्लास में फिर वो आएगा. और क्विज आपकी अभी चेक नहीं हो पाई है. मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उसको चेक कर लें. ठीक है, तो कल फिर वही 4 बजे क्लास होगी. ओके ओके मैम, थैंक यू.